So today we are going to start our class with this fourth question of exercise 6.3. In this question, in this exercise, we are using two results. We already know that the sum of three angles of a triangle is 180 degree, and second result is exterior angle property. We proved these two results in our previous class. और जो आपका exterior angle होता है, this is equal to the sum of two opposite interior angles of the triangle, right? These two results we did in the previous class. Also, we did three questions, and now we are on the fourth question. In your fourth question, you are given this figure. In this figure, you can very easily see that there are two triangles. Few angles are given to you. This is 40 degree, this is 95 degree, and this angle is given to you 75 degree. And we have to find out the value of this angle SQP. So whatsoever we have to find out, we take that angle as X, right? So we are taking this as X, right? Here, let we assume these two angles as Y and Z, right? So to reach on X, first of all, we will find out the value of Y. Whatsoever will be the value of Y, the same will be the value of Z because they are vertically opposite angles. And then if we have two angles of the triangle, we can very easily find the third angle of the triangle. So let me first apply angle sum property to first triangle by angle sum property. In which triangle we are taking? PRT. We have 95 degree plus 40 degree plus 95 plus 40 plus Y. This is equal to 180 degree. We have written the reason that this is by angle sum property. So 90 plus 45, 100, 35 plus Y is equal to 180. So we can get the value of Y as 180 minus 135, and it will be 45, right? This is the value of Y. And now we are saying whatsoever is the value of Y, the same is the value of Z. But Z is equal to Y because they are vertically opposite angles. That means we can say that Z is also equal to 45 degree, क्योंकि ये 45 आया है, 45 तो Z भी कितना डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का, right? Now this is 45, this is 75. We have to find X. Angle sum property हम फिर से लगाते हैं. To apply angle sum property, I will have to erase this again by angle sum property in triangle. Which triangle now? PQS. What can I say? Angle Z, angle X plus third angle is 75. This is equal to 180. Now you can put the value of Z in this and get the value of X. ऊपर से erase करते हैं. Yes, Z is 45 degree plus X plus 75. This is equal to 180. Now 75 plus 45 will be 120. This is 180. So we can say that X is equal to, what should be added to 120 to get 180? That is 60. So the value of X, that is angle SQT, will be equal to 60 degree, right? So next is your question number 5. You are given this figure in this question, and they are saying in this figure, if PQ is perpendicular to PS, PQ is perpendicular to PS. This sign shows that the angle is 90 degree. These two lines are perpendicular to each other. Also, you are given angle SQR, 28 degree. This is, I have mentioned 28 degree. This angle is given to you. And angle QRT is 65 degree. This one. Then find the value of X and Y. Few values are missing. Value of X and the value of Y. We have to find out its value, right? So इसकी value find out करने के लिए आप क्या करेंगे?
हमें एक चीज गिवन है दैट दिस इज परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं. That means we can apply that x and y. Their sum will be 90 degree. Other than this, you are given that these two lines are parallel. हम parallel वाला concept use करते हैं. अगर आपकी ये दोनों lines parallel हैं, what can I say? These two angles, ये एंगल आपके कैसे एंगल्स बन रहे हैं? These are alternate interior angles, right? So I can say that angle PQR is equal to angle QRT, as you will write PQ is parallel to ST. That implies angle PQR is equal to angle QRT. But PQR तो आपका दो पार्ट्स में है, x plus 28. तो PQR की जगह तो आपने लिख दिया x plus 28 degree. This is equal to QRT, that is 65 degree. So we can say, अच्छा यहाँ पे reason तो लिखा ही नहीं आपने. Here the reason will be alternate interior angles, right? They are making the structure like Z, so they are alternate interior angles. Then we have put their value. This angle is equal to x plus 28, and here this angle is 65. That means the sum of x and 28 will be 65. So we can say that x is equal to 65 minus 28. कितना डिग्री का आ जाएगा? It will be 37 degree. ठीक है? Okay. So this value of x is 37 degree. Now you have to reach on the value of y, right? ये 90 degree. This is 37 degree. This angle we have to find out. So which property we can apply? We have this triangle. So we can apply angle sum property. By angle sum property in triangle PSQ. PQS. What can we write? 90 plus x plus y is equal to 180 degree, right? So 90 plus x is 37, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, plus y, this is equal to 180 degree. ठीक है, तो इसको प्लस करो, 127 plus y is 180. So what will be the value of y from here? It will be 180 minus 127 degree. हाँ जी, कितने डिग्री आया है? 53 degree, right? So you are getting the value of y to be 53 degree and the value of x to be 37 degree. So in your answer you have 37 degree and 53 degree. This is your question number 5. So next question we have to start with the last question of the exercise. And in this question, what is given to us? We are given a triangle PQR. One of its rays extended. QR line आपकी extended है. Now they are saying that we have to take the bisector of this angle. PQR का मुझे bisector लेना है. Bisector means the line which divides this angle into two equal parts. तो यहाँ से एक line draw की है, ये bisector है. Similarly, we have to take the bisector of the exterior angle. यहाँ पर जो आपका exterior angle है, that is PRS. ठीक है, इस एंगल को भी हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, एंड फ्रॉम हियर आई एम टेकिंग द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए because this is the bisector and this point is given the name P. Now what you have to prove is this angle is half of this angle. जो भी ये एंगल होगा इसका हाफ ये होगा. देखो एक ये रिजल्ट है. थ्योरम्स क्या होती हैं एक्चुअली में? ये रिजल्ट ही होती है. मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ एक एग्जांपल लेकर, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि आपने करना क्या है, मतलब आप क्या प्रूव करने जा रहे हो. आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, आप इसके कुछ भी एंगल रिज्यूम कर लीजिए. मैं सपोज इसके एंगल्स ले रही हूँ. लेट दिस एंगल इज 70 डिग्री, ये एंगल ले लिया मैंने 50 डिग्री, एंड दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए. सो इससे इनका तीनों का सम 180 भी हो गया.
मैंने इस रे को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देन आई हैव टेकन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, इसको एंगल को हाफ कर दिया। जैसे ही इसको हाफ किया, ये 50 डिग्री था तो ये 25 और ये 25 हो गया, राइट। इस एंगल का भी हाफ कर दिया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। इसका हाफ अगर आप करते हो दैट मीन्स आपने ये 60 कर दिया और ये भी 60 कर दिया, ठीक है। अब इस एंगल को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये कितने डिग्री का है, उसके लिए मुझे इस ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में जाने के लिए, इस ट्राइंगल के लिए मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी चाहिए सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ये 25 है, ये 60 है, ये 60 है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री हो गया इस ट्राइंगल का। दिस इज 120, दिस इज 25, 25 और 120 में क्या ऐड करें कि ये आपका 180 बन जाए, ठीक है। When you will solve this, you will get this value to be 35 डिग्री। ये एंगल आपका हमेशा ही कितना आएगा, जो भी आपने यहाँ एंगल लिया हुआ होगा ये उसका हाफ आएगा। यू कैन ट्राई दिस विद एनी अदर एंगल्स ऑल्सो। आप इस ट्राइंगल के कोई भी एंगल्स अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो, बस आपको एज्यूम करते टाइम ये ध्यान रखना है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। फिर आप इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो। ये एंगल जब आप फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल हमेशा ही इसका हाफ आएगा। अब आपको ये रिजल्ट तो पता चल गया, अब आपने इसको प्रूव करना है, राइट। प्रूव करना है, दैट मीन्स दिस इज अ थ्योरम नाउ। एंड इफ दिस इज अ थ्योरम, वी नीड टू राइट व्हाट। इसके कुछ स्टेप्स हम लिखते हैं। एक तो थ्योरम के हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट वी हैव टू प्रूव। So what is given to you? You are given a triangle PQR, ठीक है, and then you are given, आपको ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, ये भी आपको बाइसेक्टर गिवन है, तो मैं इनको नेम्स दे देती हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4, right? So what is given to me? Angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4, ठीक है। These are the angles I am taking, and now what I have to prove? I have to prove that angle, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंगल QTR is equal to half of angle QPR, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या प्रूव करना है। QTR is equal to half of QPR, तो मैं इसको सीधा सिंपल सा लिख लेती हूँ, दैट एंगल T is equal to half of angle P। QPR लिखें या P लिखें एक ही बात है, QTR लिखो या एंगल T लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज एंगल T is equal to half of angle P। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। अब हम करने जा रहे हैं इसका प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल these two angles are given equal, इसको हम x assume करते हैं। 3 and 4 are given equal, let me assume them as y। let angle 1 is equal to 2 is equal to x and angle 3 is equal to angle 4 is equal to y, right। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि हम इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, राइट। आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स पे आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की हम सेटिंग करेंगे, और सेटिंग किस तरह से करेंगे कि वो आपको ये दे, राइट। तो लेट वी अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी टू, कौन से ट्राइंगल पे लगाते हैं सबसे पहले, लेट मी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल PQR, ठीक है, बाय exterior angle property in triangle PQR. What can I write by exterior angle property? मेरा angle PRS ये exterior angle है, this is equal to angle PQR plus angle QPR। देखो what I have done, मैं अगर इसको अभी के लिए भूल जाती हूँ कि ये मेरे पास कुछ है, ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बनती है ये एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR, ये एंगल इसके और इसके सम के इक्वल है। सो एंगल PQR
प्लस एंगल QPR, राइट? ओके, बट PRS तो क्या था? PRS तो मेरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं वापस इस लाइन को लेकर आती हूँ। दिस इज माई लाइन वंस अगेन। आई हैव दिस एंगल PQR तो एंगल 1 और 2 के इक्वल है, इन दोनों के सम के। तो मैं PRS की जगह, सॉरी, PRS इज दिस, PRS तो मेरा 3 + 4 है, ये तो यहाँ आएगा। दिस इज 3 + 4, PRS इज 3 + 4। और एंगल PQR की जगह आप क्या लिखोगे? PQR इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस QPR को हमने पहले ही सिर्फ P लिखा था, तो इसको सिर्फ P लिख देते हैं, राइट? अब 3 + 4, 3 और 4 किसके इक्वल लिए थे आपने? हमने क्या एज्यूम किया था? 3 and 4 दे आर Y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 + 4 मीन्स Y + Y इज इक्वल टू 1 और 2 किसके इक्वल थे? ये थे X के इक्वल। दिस इज इक्वल टू X प्लस एंगल P, ठीक है? उसके बाद यहां से आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2y इज इक्वल टू 2x प्लस एंगल P। So till now you have reached here. Let me write it as y plus y, 2y is equal to x plus x, 2x plus angle P। What I have to prove, मैं एक बार यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ। मुझे प्रूव करना है एंगल T इज इक्वल टू 1/2 एंगल P। ये मुझे प्रूव करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, राइट? Until now I have this equation. Let this is your equation number 1, right? We have applied an exterior angle property to angle PQ, triangle PQR. Now we will apply the same property to the other triangle PQR by exterior angle property in triangle. Which triangle we have now? PQR. What can I write? अब मुझे लिखनी है TQR की। उसके लिए आप भूल जाइए कि आपके पास ये है, राइट? ओके, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? सिर्फ ये एंगल 4, ठीक है? जो कि बाहर ट्राइंगल के बाहर ये वाला एंगल बन रहा है। तो वी हैव एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 2 प्लस एंगल P। इस ट्राइंगल के वो दो एंगल जो एक्सटीरियर एंगल के साथ नहीं है, उन दोनों का सम। सो दिस इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल P। बट हमने तो 4 को क्या लिया था? आवर वैल्यू ऑफ 3 and 4 was Y। सो इसकी जगह पे लिख दिया y इज इक्वल टू एंगल 2 कितना था? आपने 1 और 2 को लिया था x प्लस एंगल P, ठीक है? आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है x प्लस P। What I will do now, I will put this value of y is equal to x plus angle T in first equation। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि आप जब दोनों ट्राइंगल्स में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आपके पास जो दो रिजल्ट्स आ जाएंगे उन्हीं को आपने सॉल्व करके अपने रिजल्ट तक पहुंचना है, राइट? तो यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है, मैं इसको इसमें पुट कर देती हूँ। 2 तो एज इट इज, ठीक है? y की जगह पे x प्लस एंगल T, राइट? दिस इज इक्वल टू बाकी सारा कुछ एज इट इज 2x प्लस P। ब्रैकेट को खोलते हैं। 2 into x will be 2x, 2 into angle T, double of angle T is equal to 2x plus angle P, ठीक है? Can we cancel this 2x and 2x? क्योंकि इक्वल साइन के जब दो सेम टर्म्स एक एक तरफ होती है, एक दूसरी तरफ होती है, और दोनों का साइन भी सेम हो तो वो आपस में कैंसल हो जाती है, राइट? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊं तो ये माइनस में चली जाएगी, 2x माइनस 2x वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। अगर आपकी टर्म्स सेम हैं, एक इक्वल के इधर है, एक इक्वल टू के दूसरी तरफ है, दोनों के आगे दो या तो पॉजिटिव साइन है या दोनों के आगे ही नेगेटिव साइन है, then you can cancel the terms. So from here you are left with double of angle T is equal to angle P. Let me see हमने जो रिजल्ट निकालना था, हमने जहां तक पहुंचना था, whether we have reached there or not, हमें चाहिए था ये
एंगल टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी। टी अकेला चाहिए, इसके साथ 2 आ रहा है, इस 2 को शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ। जैसे ही 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा, देन इट विल गो इन डिविजन। सो व्हाट यू विल गेट, एंगल टी इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाकर क्या हो गया, 1/2 एंगल पी। यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ दोनों एक्सटीरियर, दोनों ट्राइंगल्स में, 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, हमने दोनों के अंदर एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है। एंड इफ वी आर अप्लाइंग टू वन ऑफ द ट्राइंगल वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। दूसरे ट्राइंगल पे लगाते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को इसमें पुट करेंगे, ब्रैकेट खोलो, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और जो आ गया उसको आपने उस फॉर्म में सेट करना है जिस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, राइट। तो सिर्फ दिखने में क्वेश्चन बड़ा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो सिर्फ आपने ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं दैट यू हैव टू अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी टू बोथ द ट्राइंगल्स, और जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी सेटिंग करनी है और उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में सेट करना है, लिखना है, ठीक है। जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर।